میں انالیسس پہ پیچھا تھا کال کرنے سے پہلے جتنا دل چاہے آپ بات کریں. اس وقت ہم 20-25 لوگ بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, اور میں تھوڑا سا کلاس کا تعارف اس انداز سے بریف کرتا ہوں. یہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے لوگ ہیں اور خصوصاً این جی او کے پرٹیکولرلی ہمارے کورس کا ٹائٹل ہے 1 month سرٹیفکیشن کیپیسٹی بلڈنگ ٹریننگ کورس فار فلانتھراپسٹ اینڈ ڈیولپمنٹ مینیجرز اینڈ ایکٹیوسٹ. یہ ہے ہمارے اس کورس کا, یہ 12 فروری سے شروع ہوا ہے, یہ مارچ تک چلے گا. اور اس میں ہم روزانہ کی بنیاد پہ 2 لیکچرز کا اہتمام کرتے ہیں, 2 ریسورس پرسن اینڈ گیسٹ اسپیکر ڈگنیٹیز. ٹھیک ہے نا, خوشحال صاحب ذرا اندر کی ہوتا ہوں بیٹھو لیڈیز کے ساتھ تو یہ ہمارا مطلب ہے کہ بنیادی بات ان لوگوں کیپیسٹی بلڈنگ کے اور ذاتی طور پہ اس حوالے سے اس کورس کا بنیادی مقصد اس سے پہلے SWTI کا انٹروڈکشن بھی بریف کر دوں. یہ ہیومن رائٹس کا ایک ادارہ ہے اور ایک ماضی میں جب سوشل ویلفیئر منسٹری تھی, اس ادارے کے پلیٹ فارم سے این جی اوز کی اسٹیشن اور ان کے باقی کاموں کو اقدامات کو فروغ دیا جاتا تھا. اور اس حوالے سے یہ ادارہ پورے پاکستان میں 70 ڈسٹرکٹس کے اندر صاحب ہمارے جو بیٹھے ہیں میزبان ہوسٹ, انہوں نے ہمیں یہ سہولت دی ہے. اور اس حوالے سے اس حوالے سے جو انہوں نے ہمیں سہولت دیا ہے, اس سہولت میں ہمیں فیسیلیٹیٹر آرگنائزیشن ہے گلوبل پیس اینڈ ہارمنی یو کے بیس, اس کے پاکستان کے چیپٹر کے افتخار آپ کے برابر میں بیٹھے ہیں. لانچ کے پلیٹ فارم سے اسلام آباد اور اس حوالے سے ہمارا اور نیٹ ورک ہے PHNR نیٹ ورک, پاکستان ہیومن ریسورس نیٹ ورک کے پلیٹ فارم کی کولابریشن ایکٹیویٹی چل رہی ہے. اور ہم نے آپس میں پر ویک پر کورس کو آنرز کیا, اس کی اسپانسرشپ اور اس کے مینجمنٹ, اس کی لاجسٹک, اس کی کاسٹنگ کو ہم نے بیئر کیا. یہ ہے اور فیوچر میں ہم یہ پلیٹ فارم آپ کے ادارے کو بھی آفر کریں گے. لاجواب آپ نائس کے پلیٹ فارم سے آپ نائس کے پلیٹ فارم پہ آئے اور منسلک ہیں. اس منسلکی سے ہٹ کے کا ایشو آئے گا یا اس کے معاملات ہیں, اس پر یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے اویلیبل ہے. مولانا طارق صاحب جیسی شخصیت جو ہے نا سپورٹو شخصیت ہے, تو لہذا اب آپ اپنے من سے اپنی بات چیت کو بڑھا سکتے. تھینک یو سو مچ جی. السلام علیکم ایوری ون, کیسے ہیں آپ سب؟ اچھا, تو سب سے پہلے تو جیسے سر نے کافی ڈیٹیل میرے بارے میں آپ کو بتایا بھی, اور میں بھی ان شارٹ اپنے بارے میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ ساتھ ساتھ تو ہم ضرور کہیں گے کہ ہم کیا بات کریں, لیکن میرا جو آج کا ٹاپک ہے دیٹ از زندگی بہت خوبصورت ہے. آپ لوگ مانتے ہیں یہ چیز؟ اچھا, اب آپ لوگ بھی یہ سوچتے ہوں گے کہ ایک ایسی بندی جس کو نظر نہیں آتا, جو وائٹ چینج یوزر ہے, وہ کیسے کہہ سکتی زندگی خوبصورت ہے کہ نہیں ہے؟ جبکہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں بائی برتھ بلائنڈ نہیں تھی. 12 سال کی عمر میں 5 منٹ میں میرے سر پہ چوٹ لگی اور میں زندگی کے روشنیوں سے نکل کے میں اندھیرے کی طرف میرا راستہ چلا گیا تھا. بالکل اندھیرا تھا, گپ اندھیرا, ایسے لگتا تھا کہ صرف قبر ہی قبر کا اندھیرا ہے. صرف لوگوں کی آوازیں سنائی دیتی تھے, ہائے بیچاری اندھی ہو گئی, مخدوم کی بیٹی اندھی ہو گئی. جیسا کہ آپ کو بتایا کہ میرا تعلق سید فیملی سے ہے, ہم پیر فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, تھوڑا سا کنزرویٹو تھا وہاں پہ, تو یہ چیزیں تھوڑی سی چیلنجز مجھے فیس کرنی پڑی. لیکن کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ سب سے بڑی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ مایوسی گناہ ہے. 2 چیزیں دور کیسا محسوس ہوگا, کیسی بے بسی محسوس ہوگی. آپ یہ سوچیں کہ آپ بالکل آپ کچھ کرنا چاہیے, آپ کے سامنے بہت سارے کھانا پڑا ہے, آپ کے سامنے کلرز ہیں, لیکن آپ ہاتھ بڑھا کے چیزیں اٹھانا بھی چاہ رہے ہیں, لیکن آپ پر نہیں آ پا رہا. کیا فیلنگ ہوگی آپ کی؟ یا ایسی جگہ جہاں پہ آپ اپنی بات بتانا چاہ رہے ہیں,
आप तकलीफ में हैं, आप बोलना चाह रहे हैं, लेकिन क्या है, आपके पास आवाज ही नहीं है, कैसा फील होगा? हाउ आर यू फीलिंग दिस टाइम? होपलेस। कहते हैं ना कि यही तो ही अक्सर डिसेबिलिटी है। आंखों पे पट्टी बांध के पूरे एनआईसी करवाए, वो चीज रह तो जाएगी, लेकिन 3-4 दिन बाद आप भूल जाएंगे। ऐसा ही है ना, टांगे बांध दें आपको और कहीं के रोड क्रॉस करें, थोड़ी देर तो आप उस ट्रॉमे में रहेंगे, फिर आप तो भूल जाएंगे। ऐसा ही है ना, कहते हैं ना कि चहचहाते हुए परिंदे, कलरफुल फूल, और मतलब रंग किसको अच्छे नहीं लगते? मुझे भी अच्छे लगते थे, बहुत अच्छे लगते थे। When I was just in 12 years old, मैं बहुत ज्यादा खुश, राइटिंग बहुत अच्छी थी, मैं कलर से खेलना जानती थी, मैं परिंदों के साथ खेलना जानती थी, यानी कि हर चीज में हर फन मोला थी। लेकिन सिर्फ एक हादसा, जस्ट वन मोमेंट, कि आपको समझ भी नहीं आती कि आपको जिंदगी कहां से कहां पलट देती है। और वो कहते हैं ना कि आप बिल्कुल सीधे जा रहे हैं, और बिल्कुल सीधे, जैसे हम यहाँ ऊपर आए हैं, आते थे रास्ते में बहुत सारे पिलर आपको नजर आएंगे, कुछ भी नहीं, किसी पिलर में जाके हिट हुई, समझ ही नहीं कि हुआ क्या। जब पता चला तो ये पता चला कि जी, सुनते थे कि अनारकली को दीवारों में चुनवा दिया गया। कहते थे हाय अल्लाह, पता नहीं बेचारी क्या करती होगी, कैसे खाती होगी, कैसे पीती होगी। लेकिन तब इस चीज का एहसास हुआ कि वाकई कब्र का अंधेरा होता क्या है। लोग मर जाते हैं, लोग जनाजे के साथ उसको, और वो कौन सी जात है? वो सिर्फ मेरे अल्लाह की जात है। 12 साल की उम्र की बच्ची की क्या सोच होगी, आप खुद बताएं। मैं अपने स्कूल में टॉपर थी, मैंने कभी सेकंड पोजीशन, राइटिंग बहुत अच्छी थी, मैं हर लिहाज से बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि क्या चीज। एक दफा ऐसा हुआ था कि मैं गुजरी कहीं से, तो मैंने देखा कि 2 बच्चियां जा रही हैं, उनकी आंखों पर चश्मे लगे हुए हैं, हाथों में सोटियां, वो ठक 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 करते जा, और मैं उनको ऐसे देख रही हूँ लाइक दे आर एलियंस। ऐसे ही है ना आपको दिमाग, अब जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, आप लोग जब मैं आ रही थी, आप लोग के जहन में ये सोचोगे नहीं कैसे जिंदगी गुजारती होगी। ऐसे ही है ना, अपनी ड्रेसिंग कैसे करती होगी, तैयार कैसी होती होगी, क्या बोलती होगी, इसके एहसास होते भी होंगे नहीं होते होंगे, हाय बेचारी। राइट, एक सबकी है ना, एक रियलिटी है। तो मेरी भी ऐसे ही थी, लेकिन आप यकीन करें कि अल्लाह मियां जब आपको चीजें दिखाता है ना, अल्लाह मियां आपको ये दिखा रहा होता है कि आप जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप यकीन करें, 6 महीने बाद से मेरा बहुत साथ दिया। मेरे पापा मुझे कहते थे कि बेटा क्या हुआ है ना, इसमें कोई इतनी बड़ी चीज तो नहीं है। मैं अपनी नानों के पास गई कि नाना मुझे चाहिए कोई ऐसी परी जो मेरी भी जिंदगी बना दे। देखो सब कुछ करते हैं, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। अब % दिमाग इस्तेमाल करते हैं, डॉल्फिन फिश जो है वो 40% दिमाग इस्तेमाल करती है, और जबकि एक साइंटिस्ट जो है वो 14% दिमाग इस्तेमाल करता है। और उसमें सबसे प्यारी बात ये थी कि आपका दिमाग इतना स्ट्रॉन्ग करता है ना कि आप अपने दिमाग को कोई प्रोग्राम दे देना, आपका दिमाग वो करके दिखाता है। तो उस वक्त बचपन में मेरे क्या ख्वाब थे, अब आप सुने। मैं कहती थी कि मुझे नजर नहीं आता, मैं एक कब्र में बंद हूँ, मैं अनारकली बन गई, कब्र में दफना दी गई हूँ, मुझे लोग खाना भी खिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और मैं ये सोचती थी कि एक राबेल पे ज्यादा है जो सुबह फजर के टाइम उठती है, अपने सारे मामलात देखती है, जॉगिंग पे भी जाती है, सारे काम करती है, अपनी ड्यूटी करती है, राबेल पे ज्यादा कराटे भी सीखती है, राबेल पे ज्यादा म्यूजिक भी सीखती है। और ये मेरे सारे प्लान थे जो सुबह से लेकर रात 12 बजे तक चलते थे, और इन्हीं प्लान्स को मैं अंदर ही अंदर तरतीब देती गई। आज से ये मैं बात बता रही 2004 की, 2024 में वही राबिल पेज़ादा कराटे चैंपियन भी है, वही राबिल पेज़ादा जो है, वही राबिल पेज़ादा जो है इंटरनेशनल लायंस क्लब में फर्स्ट साइड एम्बेसडर भी है, और वही राबिल पेज़ादा जो है पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ब्लाइंड बच्चों की चला भी रही है। वही राबिल पेज़ादा अपने घर के एक्सपेंस भी चला रही है। यानी कि कहने का मकसद ये है कि आपका दिमाग आपको फौरन से जो है ना आपको बताता है कि आप क्या करना चाहते हो, डिपेंड कि आप सोचते क्या हो, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको पता है अभी के अभी आपका हमारा दिमाग जो है ना हमें टाइम टू टाइम माजी भी बताता है, हाल भी बताता है। एक तजर्बा लेके देखेंगे आप सारे। अब आप सिर्फ सारे कुछ सेकंड के लिए आंख बंद करें और आप ये देखें कि आप बचपन में आप लोग क्या कर रहे हैं। जस्ट फॉर अ फ्यू सेकंड फिर मैं आपसे पूछूंगी, क्या आंखें बंद करें और आप ये सोचें कि आप लोग अपने बचपन में हैं, आप बच्चे छोटे हैं और आप अपने बचपन में क्या कर रहे हैं। हो गया? अच्छा, कौन बताएगा आप अपने बचपन में क्या कर रहे हैं? कौन बताएगा? राणा तारिक साहब जी, मैं तो बच्चों वाली साइकिल चला रहा हूं। बच्चों वाली साइकिल चला रहे हैं। ओके जी, नेक्स्ट। नानी के घर, नानों के घर है ये। नेक्स्ट। मार खा रही मार खा रही है। ओके जी, नेक्स्ट।
कलम उठाया मैडम आपने, कलम उठाया हुआ है। ओके नेक्स्ट, पड़ोसियों की बेल बजा के भागा। पड़ोसियों की बैल बजा के उठा गए। ओके नेक्स्ट, मामा की हेल्प कर रहे हैं। मामा की हेल्प कर रहे। ओके, अब देखें ये आपका वो बचपन था जो बचपन में आप लोग सोचते थे, ऐसे ही था ना? लेकिन अब इन फ्यूचर आप ये देखें जो साइकिल चला रही हैं उनकी आज भी बहुत सारी ख्वाहिशात हैं, वो अभी भी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, ऐसे ही रहना था। जिन्होंने पड़ोसियों की बैल बजा के भागी थी वो आज भी अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा मतलब अपनी जिंदगी को और अच्छे तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं और मजीद अपनी लाइफ पे जो है ना वो स्ट्रगल करना चाहते हैं कि मजीद लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट ले। ऐसा ही है जो हेल्प कर रही है, उन्होंने तब भी यही सोचा था कि हेल्प करें और आज भी वो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं। ऐसे ही है ना? अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि अब आज से हम 50 साल या चले 20 साल आगे चले जाते हैं, तो अब आप तब देखें कि आप बुजुर्ग हो गए हैं तो आप क्या करते हैं? रिटायर्ड लाइफ लाइफ एंजॉय करें, जिन्होंने होना है वो बताएं। हाँ सही बात है। और ना मैं थोड़े नाल दिल तो बच्चा है जी। बच्चा नहीं तो जवान है। एनिमल एल्स कोई बताना चाहेगा? नमाजें पढ़ ली, नमाज़ें पढ़ें, दुआएं करें। ओके जी, तो वेल आपको कहने का मतलब ये है कि हमारे इंसान की दो चीजें होती है, एक कॉन्शियस और एक सब कॉन्शियस। कॉन्शियस वो होता है जो हम आप सामने सारे बैठे हैं, सब कॉन्शियस वो होता है जो हमारे बैक पे होता है। और आप इसकी सिंपल सी मिसाल है कि आप एक मूवी देख रहे हैं या कोई बड़ा प्यारा सा कोई ड्रामा देख रहे हैं यूट्यूब पे, ऐसा ही है ना? एकदम से ना वो पेप्सी का आता है, कोका कोला, और वो गुजर जाता है। हमारा दिमाग क्या करता है? सारी फिल्म तो भुला देता है, दिमाग उसी पेप्सी पे जम जाता है, ऐसे ही होता है ना? और उसके बाद हमारा दिमाग उसके ऊपर जाता है, पेप्सी लेके आता है। जब तक वो पेप्सी नहीं पिएगा ना उसको सुकून नहीं मिलेगा, उसको प्रोग्राम नहीं अच्छा लगेगा। तो कहने का मकसद ये है कि हमारा जिंदगी बहुत 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 खूबसूरत है। ये मैंने तब सीखा when I was just 12 years old। मैंने तब जिंदगी में सीखा कि दो ही चीजें हैं, डू और डाई, या कुछ कर जाओ या मर जाओ। मुझे पहले बहुत सारे गिले होते थे, अल्लाह मियां मेरे साथ ऐसा क्यों, मैंने क्या किया था, क्यों मेरी निगाह ले ली? लेकिन जब मैं एक बच्चे से मिली, वो ही was just only 5 years old, उसकी घुटने टांगे जो हैं वो हिप से जुड़ी हुई थी, उसके देख नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था, वो 5 साल का था। और मुझे यही हुआ कि या अल्लाह इसके साथ अल्लाह ताला को क्या दुश्मनी होगी? कुछ भी नहीं, एक आजमाइश है ना। मैंने वो सजदा मुल्तान में किया था और मैंने तब ये समझा था कि अल्लाह ने अगर मेरी निगाह ली है तो मुझसे अल्लाह मियां कुछ बहुत बड़ा काम लेना चाहता है। क्या? उसके लिए मुझे सबसे पहले एजुकेशन हासिल करनी है, क्योंकि जो कुछ भी है ना कि हमारी तालीम हमें जो है ना सबसे आगे लेके जाती है। जिस इदारे में इस टाइम मैं चीफ एग्जीक्यूटिव कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पे हूँ, उस वक्त मैं इस इदारे में एक छोटी सी डरी सहमी बच्ची होके आई थी कि पता नहीं मेरा फ्यूचर क्या होगा, मैं पढ़ पाऊंगी या नहीं पढ़ पाऊंगी। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने इंटरनेशनल बिकन हाउस में 3 years सक्सेसफुल जॉब की है। और आप हैरान होंगे कि मैंने अपनी लिसनिंग स्किल्स में मैं वीडियोस बनाती थी और मैंने उनके 67 years रिकॉर्ड तो रहे हैं कि आज तक उनकी कभी पहली ब्लाइंड टीचर रही थी मैं बिकन हाउस में। तो वो मैंने एक स्ट्रगल की, अपने आप को समझाया। उस वक्त मेरे नजदीक 2 किस्म की जिंदगी थी। तब मैं कहती थी 2011-12 में जिंदगी बहुत खूबसूरत है, उस वक्त जिंदगी बहुत खूबसूरत है सिर्फ मेरे लिए होती थी। मैं अच्छे से तैयार हो गई, अच्छे से मैंने एंजॉय कर लिया और मुझे लगता था दैट इज द एक्चुअल लाइफ। मेरा डेली का सूट 20,000 की, क्योंकि मुझे लगता था आपने अचीव कर लिया ना, मतलब आपने मास्टर्स कर लिया, आपने मतलब पार्लियामेंट हाउस में काम कर लिया, आपने बिगन हाउस में काम कर लिया, आप लाइन्स क्लब में चले गए, आप कराटे चैंपियन बन चले गए, ऐसे ही है ना? अब आप जब सारे गोल अचीव कर लेते हैं आपको ये लगता है कि जिंदगी पुरसकून हो गई और क्या चाहिए हमें, ऐसे ही है ना? लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी में एक ख्वाहिश जरूर थी। मुझे लगता था कि ये सब कुछ तो सिर्फ मेरे साथ हुआ है, मुझे अपॉर्चुनिटीज मिली। हमारे मुल्क में कितने ऐसे नाबीना अफराद हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनको आज तक कभी मौका ही नहीं मिला। अगर आबिल पे ज़्यादा मर गई तो कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन हम तो अमर होने के लिए आए हैं। तो उस वक्त मैंने फिर, आप यकीन करें, मैंने अपनी बिकन हाउस की जॉब छोड़ी, मैंने पार्लियामेंट हाउस की जॉब छोड़ी और जिस टाइम पे मैंने एक इदारे को ज्वाइन किया, मैंने वॉलंटियर ज्वाइन किया, दैट वाज पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस। और यहाँ पे आके फिर मैंने उन तमाम बच्चों के साथ जब मैंने ज़िंदगी गुजारी, उनके मसाइल देखे, हमने उनके साथ एजुकेशन उनको तो हम दे रहे थे 1988 से फ्री एजुकेशन देते हैं पूरे पाकिस्तान में, जिसमें हम उनको जितनी भी, जैसे कि अब आपको लग रहा होगा कि मैं ब्लाइंड हूँ, मैं कैसे पढ़ी होंगी, वैसे आपके दिमाग में क्या आ रहा है, मैंने कैसे तालीम हासिल की होगी? ओके, एनिमल कोई मिलता है असिस्टेंट, आपको मिलता है आपका जूनियर। ओके ओके, मजे की बात हो, मुझे ब्रेल आती ही नहीं है, तब भी उसके बावजूद मैंने कभी सेकंड पोजीशन भी हासिल नहीं की। शायद तो बोला
اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میں نے جس ادارے میں کام پڑھنے گئی 1995 میں، انہوں نے آڈیو ورلڈ کا ایک پروگرام انٹروڈیوس کروایا پورے پاکستان میں. آپ یقین کریں پوری بک ریکارڈ کی ہوئی. آپ کو آج ایک بک کتنے کی ملتی ہے اگر بازار سے بچوں کے لیے خریدیں؟ ایک بک کتنے کی مل جاتی ہے؟ کم سے کم تو 100-150 تو کم ایسے ہی ہے. 100-150 باقی ہزاروں میں. اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ادارے میں پوری ایک بک ریکارڈ کر کے بچے کو دی جاتی ہے صرف 5 روپے میں. صرف 5 روپے میں ایک کتاب دی جاتی ہے کہ نابینا بچہ اپنی تعلیم حاصل کرے. اور یہیں سے ہی میں نے اپنی تعلیم حاصل کی اور میں نے جناب ماسٹرز ایم فل انگلش سارا کچھ میں نے یہیں سے کور کیا اس ادارے سے. پھر ہم نے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی ٹریننگ کروائی کہ اگر میں یہاں بیٹھی ہوں اور میں اس طرح سے ہل رہی ہوں آپ کو اچھا لگے گا. میں آنکھوں میں انگلیاں مار رہی ہوں آپ کو اچھا لگے گا. میں منہ سے آوازیں نکالا کہ یار کس کو بلا کے بٹھا دیا. ایسے ہی ہے نا. تو دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ کس کو کیوں بٹھا دیا ہے. ہم یہ نہیں سوچتے یہ ایسا کیوں کر رہا ہے. ایسے ہے نا. ہم وجہ نہیں سوچتے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. ہم راستے میں گندے بچے دیکھیں گے گندے کپڑوں والے کتنا گندا ہے. یہ نہیں سوچتے کیوں گندا ہے. What's the reason behind؟ کیوں ایسا ہے. اور جب میں فرسٹ ٹائم آئی تو مجھے بڑا عجیب لگا. بچے ہل رہے ہیں کیا کیا انہوں نے جی ایم فل کیا ہوا ہے PhD کیا ہوا ہے. کر کیا نہیں ہے کھانا کھایا. تو وہ بجائے کوئی ان کو یہ سمجھے کہ کیوں ہوا ایسا تو اس وقت ہم نے ایک کورس کا آرگنائز کیا دیٹ از پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ورک شاپ. اس میں ہم بچوں کو بالوں کو ڈائی کرنا سکھاتے, ویکس کرنا سکھاتے, فارمل انفارمل بیہیویئر سکھاتے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. پھر میرے پاس کچھ اور مسائل سامنے آئے. دیٹ واز کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلائنڈ بچے شادیاں کرتے ہوں گے؟ اور کس کے ساتھ شادی کرنی چاہیے ان کو؟ کس کے ساتھ ہوتی ہوگی بلائنڈ بچوں کی شادیاں؟ عموماً لوگ تو بلائنڈ کے ساتھ کر دیتے ہیں. ایسا ہے تو ایک دو لوگ کیس ایسے ہوتا ہے نا. اور آپ کو پتا ہے کہ جی 2016 میں جب میں نے یہ دیکھا کہ جی میں سنتی تھی بچوں کی شادیاں ہوئی ہیں ڈائیورس ہو گئی ہیں, شادیاں ہو گئی ہیں ڈائیورس ہو گئی ہیں. کیا وجہ رہی؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی ہو مرد چاہے ڈسیبل ہے چاہے سائٹڈ ہے, آپ لوگ سب میری بات سے اتفاق کریں گے. آپ لوگوں کا دل کرتا ہوگا جب آپ گھر جائیں گھر صاف ستھرا ملے. ہمارا گھر میں کھانا پکا ہونا چاہیے, گھر بالکل صحیح سلامت ہو. اور جب آپ کی فیملی جب آپ کے ساتھ باہر نکلے تو سب کو پتہ چلے کہ واقعی کوئی آیا ہے آپ کے ساتھ. ایسا ہی ہے نا. تو ایک بلائنڈ بندے سے تو وہی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے. تو اس وقت ہم نے ان کو کوکنگ کرنا سکھائی کہ یہ کوکنگ کریں, اپنے گھر کو چلائیں. اور آج یقین کریں کہ ایک وقت یہ تھا جسٹ بلائنڈ ٹو بلائنڈ شادی ہوتی تھی, اب 90% بلائنڈ ٹو سائٹک لوگوں کی شادیاں ہونے لگی ہیں. ڈاکٹر کے ساتھ, ایئر فورس کے ساتھ, بحریہ والوں کے ساتھ, جرنلسٹ والوں کے ساتھ. تو یہ پورا کا پورا نظام ایک دم سے چینج نہیں آیا. اس کو چینج کیا ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اور دوسرا میرے اس دماغ نے, جو صرف دماغ میں ایک خاکہ بناتا تھا کہ رابل ایک دنیا آئے گی جس میں بلائنڈ لوگوں کو لوگ اپریشیٹ کریں گے. ایک ٹائم آئے گا لوگ رابل پہ زیادہ کچھ سنیں گے. مجھے ایک بہت سارے خواب ہوتے ہیں لیکن ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ ہمارے اندر 2 قسم کے پودے ہوتے ہیں, بیج ہوتے ہیں, ایک نیگیٹو کا ایک پازیٹیو کا. ایسے ہی ہے نا. ہم تو کیا کرتے ہیں انفارچونیٹلی ہم جو نیگیٹو والا پودا اس کو تو دبا کے پانی دیتے ہیں, پیو پانی پیو, یہ تو ہے ہی, سارے ایسے کہہ رہے ہیں. تو کیا ہوتا ہے وہ تناور درخت بن جاتا ہے اور ہم پازیٹیو والے درخت کو پیچھے کر دیتے ہیں. کہتے ہیں اگر آپ نے دیکھنا ہو نا کہ آپ کے اندر کیا چیز زیادہ ہے, نیگیٹیوٹی یا پازیٹیوٹی, اس کا دیکھنے کا پتہ سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ آپ کیسے اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں کہ آپ اس ٹائم نیگیٹو تھاٹس آپ کے اندر ہیں یا پازیٹیو تھاٹس ہیں؟ کون بتائے گا؟ نہیں کر سکتے اپنا اینالائز. سب سے آسان طریقہ, آپ صبح اٹھیں شیشہ دیکھیں, روز سے دیکھیں. میں بھی روز دیکھتی ہوں, بنا نا کا شیشہ دیکھتی ہوں. بے شک مجھے نظر نہ آئے لیکن میں بنا نا کا شیشہ دیکھتی ہوں. ہم نے ان کے لیے یہ بنائے بینڈس جو بہت ایزیلی آپ لوگ بھی بنا کے اپنے پاس آپ لوگوں کو جیب میں ہونی چاہیے. اس میں کچھ بھی نہیں ہے, خالی پٹی ہے, اس کو 2 طرف سے سیا ہوا ہے. ایک طرف سے میں پکڑتی ہوں, ایک دفعہ کسی کو بھی کہتی ہوں ایکسکیوز می پلیز مجھے جو ہے نا وہاں تک بھیج دیں, اور وہ چلے جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمارا کانفیڈینس بوسٹ بھی کرتی ہیں اور ہمارا کانفیڈینس ڈاؤن بھی کر دیتی ہیں. آپ کو کس دفعہ ایسا کوئی سامنے, اب میں کہوں جی میں نے اب آپ فرض کریں یہاں پہ کوئی کھانا لگا ہوا یا ہارٹی لگا ہوا, تو نارملی کیا کریں گے آپ اکثر پلیٹ میں ڈال دیں گے. ایسا ہی ہے نا میڈم, آپ کھا لیں, یا پھر آپ کیا کریں گے میری انگلی پکڑ کے اس میں ڈالنا شروع کر دیں گے. ایسا ہی ہے نا, یہ پلیٹ ہے یہ. لیکن اگر آپ اس کی جگہ یہ سمجھیں کہ آپ خود دیکھیں کہ آپ کو اگر آنکھوں پہ پٹی باندھ کے آپ کے سامنے پلیٹ دے کے آپ کے اندر ہاتھ ڈالنا شروع کر دیں اور کئی لوگ بیٹھے ہیں, آپ کو کیسی فیلنگ آئے گی؟
कुछ टाइम के लिए सोच के देखें, और आप हैं भी एक अफसर, बुरा लगेगा ना। उसके लिए सबसे बेस्ट क्या होता है कि क्लॉक, जैसे क्लॉक होती है ना हमारी वॉल क्लॉक, वो गोल होती है, ऐसे ही है, या वो चौरस होती है। उसके ऊपर क्या होता है, ऊपर 12 होती है, नीचे 6 होती है, इधर 3 होती है, इधर 9 होती है। और जब भी करें प्लेट रख के उसको बताएं कि जी ये 12 है, यहाँ पे मैंने चावल डाली हैं, ये चीज़ है, ये 6 है, ताकि उसको लगे कि वाकई ही कि मैं एक अहमियत की हामिल चीज़ हूँ। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं आपको ये बता रही हूँ। आपका एक छोटा सा एक्ट किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट भी लेके आ सकता है, और छोटा सा एक्ट किसी की आंख में नमी भी ला सकता है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम करते क्या हैं। कहते मैं कभी भी ये नहीं मानती कि मंजिल खूबसूरत होनी चाहिए, मैं कहती हूँ मंजिल से ज़्यादा रास्ता खूबसूरत बनाओ, क्योंकि रास्ता खूबसूरत होगा ना, मंजिल खुद ही अच्छी रहेगी। रास्ते के पत्थर हटाओ, ये ना सोचो कि मैंने इस बच्चे को मंजिल पे पहुंचाना है, अब उसके साथ थोड़े से हर्डल्स तो बचाने पड़ेंगे। नहीं, कहते हैं ना, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये कह दो मुश्किलों से मेरा खुदा। माशाल्लाह साहब ने एक वाकया सुना, एक मिनट मुझे इनकी नज़र एक शेयर करने का कि इतनी मुफस्सल, मुदल्लल और बड़ी पुरतासीर गुफ्तगू की है, तो इन्हीं की ज़ुबानी आप लोगों के लिए कि रोशनी के शहदाई तुम भी हो और हम भी हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है। रोशनी के शहदाई तुम भी हो और हम भी हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है, जिंदगी के तीरा राह गुजारों में तुम दिए जलाते हो, हमने दिल जलाए। वाह वाह एक राबेल आपने सेल्फ प्रोटेक्शन की ट्रेनिंग दी, जी जी, वो टैक्सी ड्राइवर वाला वाक्य भी सुनाए, उससे अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट किया, और ये कितना बड़ा एक पाकिस्तान में पहला इनिशिएटिव था, थोड़ा सा वो भी शेयर। अच्छा जी, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जाहिर सी बात है, आप खुद सोचेंगे कि एक ब्लाइंड लड़की को कराटे सीखने की क्यों जरूरत पड़ी, ऐसा ही है ना, एक सेल्फ डिफेंस की क्यों जरूरत पड़ी। आप खुद सोचिए कि एक ब्लाइंड है या एक साइटिक आम बच्ची भी है, वो बाहर निकलेगी, उसको क्या तहफ़्फ़ुज़ात होंगे कि कोई उसको तंग ना करे, कुछ स्नैचिंग ना हो जाए, ठीक है, या देखें कुछ भी हो ना, फिजिकल हरासमेंट से ज़्यादा होता है मेंटली हरासमेंट, कि कोई आपको लग रहा है कि कोई आपके पीछे आ रहा है, कोई आपके पीछे चल रहा है, कोई आपको मतलब कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, करीब होने की कोशिश कर रहा है, तो वो चीज़ आपको जो है ना अंदर ही अंदर तबाह कर देती है। आपको पता है कि एक दफ़ा मैं अपने भी वाक़यात कोट करूँगी और साथ बच्चों के भी कोट करूँगी कि जो मैंने सब बच्चों को ताइक्वांडो आर्ट सिखाया, ब्लाइंड बच्चों को, कि अपना सेल्फ डिफेंस कितना ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो जब मैंने लाइफ क्लब स्टार्ट किया तो मैंने वहाँ पे देखा कि ऑलमोस्ट बहुत सारे मेल हैं, ठीक है। अब हर सोसाइटी में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। जब मैं फैसलाबाद के उसमें ट्रिप में गई तो मुझे देखा कि मैं इंतज़ार कर रही हूँ अपने मतलब अजीज़ से सर अब्दुल हमीद बिलोच साहब का कि वो आए और मुझे वो अंदर तक लेके जाएं, लेकिन एक डरा सहमा बच्चा 2014-2013 में, जबकि मैं मतलब वॉकिंग बैंड भी नहीं यूज़ करती, ठीक है, और मतलब मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा कि मैंने कैसे जाना है, तो उसमें कुछ लोगों ने आके मतलब लाइक जैसे तंग करना शुरू कर, अच्छा आप यहाँ करिए, अच्छा बार बार मेरे ये चक्कर लगाएं, और उससे क्या हो रहा था, वो तो कुछ नहीं होता, लेकिन मैं मेंटली तौर पर मैं डिस्टर्ब हो रही थी। ऐसा ही है ना, मतलब बीइंग अ गर्ल आप खुद सोचिए कि आपकी आंखों में पट्टी है और कोई आपके इर्द चक्कर लगा लो, आपको नजर नहीं आ रहा, आपको फील तो हो रहा है ना, और किस किस्म के ताप। और जब वो सर आए, मैंने कहा सर यहाँ पे कोई छुए रहा था, वो बहुत गुस्से में, किसने किया, कौन मानता और कौन ब्लाइंड लड़की पे एतबार करता, मैं किसका नाम लेती। तो सर मुझे पहली दफा एहसास हुआ कि ये खौफ, मैंने घर आके मम्मा को बताया, मम्मा ने कहा बेटा अपने आप को इतना मजबूत कर लो, किसी की जुर्रत ना हो तुम्हारी आंख उठा के भी तुम्हें देखे। सेल्फ डिफेंस तो ये होता है, दिमागी सेल्फ डिफेंस होता है, कोई तुम्हें खा नहीं सकता जब तक तुम खुद ना चाहो, किसी की जुर्रत ना हो कि तुम्हारी तुम आंख उठा के देखे। दिले बीना भी कर खुदा से हासिल, दिले बीना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं। अगर आप पर दिल का नूर है तो फिर तो कुछ किसी भी नूर की आपको जरूरत नहीं है। और बाकी कोई सवाल जो आपको कोई, मेरा सवाल है मैडम से, वन बाय वन, पाकिस्तान में कितने स्टूडेंट्स के लिए स्कूल कॉलेज में ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए? देखिए अगर ब्लाइंड इंस्टीट्यूट की बात करें, गवर्नमेंट के भी बहुत सारे ब्लाइंड इंस्टीट्यूट बने हुए हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे एनजीओ वगैरह बन चुकी हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ये बात करें कि सेंसस की, ठीक है, सेंसस हम इसलिए नहीं ला पाते अभी तक डिसेबिलिटी पे, क्योंकि आपको पता है कि हमारे घर वाले डिसेबल बच्चों को खुद छुपा देते हैं, ऐसा ही होता है ना,
सेंसस नहीं दे पा रहे, लेकिन ये है कि इस टाइम पे हर जगह काम हो रहा है। इस्लामाबाद में भी स्कूल हैं, कराची में भी हैं, और हम लोग जो हैं पूरे पाकिस्तान में जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं उनको हम नाबीना अफराद के लिए उसमें वहाँ पे हम एक कंप्यूटर लैब फुल फ्लैट स्टैब्लिश करके देते हैं, जिसमें 6 से 12 कंप्यूटर होते हैं, हमारा इंस्ट्रक्टर होता है, ताकि हमारे नाबीना अफराद जहाँ जहाँ भी हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी में भी अपने आप को मनवा सकें। तो बहुत सारे स्कूल बने हुए हैं, वसाइल भी हैं, लेकिन फ़र्क इतना ये है कि आप खुद जब तक जाके उन लोगों पे नहीं बैठेंगे, उन लोगों को नहीं समझेंगे, तो शायद आप अपना किरदार नहीं अदा कर पाएंगे जिंदगी में। जी, अपना नाम भी बताओ ना, इलाका भी बताओ। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, मैं खुशाब से हूँ, वालिद उसके आगे तहसील मुशहरा है, वालिद से। मेरा मैम एक ये है कि एक तो आपके इदारे का बता दें कि उसकी लोकेशन वो सारी, क्योंकि मेरा अपना कज़न है, मैट्रिक का स्टूडेंट था, तब उसके साथ मेडिकल इंजरी कोई वो ब्लाइंड हो गया, वो डिसहार्ट हो गया। मैं उसे इस स्टेज पे तो ले आया, उसे मैट्रिक कर ली, पढ़ना स्टार्ट किया, आगे पढ़ना चाह रहा है। ये जो ऑडियो वर्ड और आपका ये प्रोग्राम है ना, इसके जरिए मैं चाह रहा हूँ उसको मैं पढ़ाऊँ, आगे लाऊँ। अच्छा, इसमें मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस हमारे इदारे का नाम है, दैट्स कॉल्ड PFFB, ठीक है, पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस। मेरा असिस्टेंट आप लोगों को कार्ड भी दे देगा। ये F8 मरकज में ये मौजूद है। अच्छा, हमारे पास एक बहुत बड़ी अच्छी बात है, आपका बच्चा खुशाब भी है या इंडिया के बॉर्डर पे है, हम उसके घर तक तालीम खुद पहुंचाएंगे फ्री डाक के सर्विस के थ्रू। उसको बुक्स भी मिलेंगी, उसको MP3 भी मिलेंगे, उसको हर ट्रेनिंग भी मिलेगी। हम आपका बच्चा तब तक अडॉप्ट करेंगे जब तक वो खुद कमाने के काबिल नहीं हो जाएगा। ये हमारा वादा होता है हर पेरेंट्स से। क्योंकि उसका मैं गया सोशल वेलफेयर सर्टिफिकेट तो बन गया उसका ना, वो सर्टिफिकेशन होगी, बाकी फर्दर आगे मैंने उधर एक्सेस किया 2 दफा, तो वो कहते थे ब्रेन सीख, तो वो थोड़ा हेजिटेट कर रहा था ब्रेन से इन चीजों से ना, क्योंकि वो मैट्रिक का नॉर्मल था बच्चा। लेकिन उसकी एक वजह है ना, हमने ABC पढ़ी है, A फॉर एप्पल, B और C, ठीक है, जबकि ब्रेन टोटल 6 डॉट होती है, 1 for A, 1 to B, 1 for C। तो देखिए एक अच्छा खासा बंदा उस चीज को लेके परेशान हो जाता है, ठीक है। लेकिन मैं ब्लाइंड बच्चों को ये जरूर कहती हूँ, आप भी उसको ये कहें कि ही इज द लकीस्ट वन, कि अल्लाह ताला ने उसको दोनों नेमतों से नवाजा है, जब वो देख सकता था और जब वो नहीं देख सकता, ठीक है, लोगों के मसाइल समझ सकते हैं। आपके नंबर शेयर कर देंगे, ये F8 मरकज में है। वैसे जो हमारा ऑफिस का नंबर है दैट इज 051 2253 775 051 051 22 22 53 53 775। 77। और मैं आप मेरा नंबर भी नोट कर लें, व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मैं हर तरह की ट्रेनिंग भी बच्चों को हम घर बिठा के देते हैं। यानी कि आपका बच्चा स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, कहीं पे भी है, ये हम उसको घर बिठा के उसको कुकिंग भी सिखाते हैं, उसी के घर में उसको ट्रेनिंग देते हैं और कोई पैसे नहीं देते। मेरा नंबर है 0324 635 4626। आप मुझे जो है इस पे मैसेज कर दीजिएगा, अपना नाम और हवाला दीजिएगा, और इंशाल्लाह जो भी होगा इंशाल्लाह आप कभी भी हमें पीछे नहीं पाएंगे। हम भरपूर कोशिश करेंगे। आप कंप्यूटर्स कह रहे हैं कि यूज करवाते हैं बच्चों को, वो क्या तरीका है उसका? कीपैड डिफरेंट होता है क्या? असल में वो जो है हमारी जो मोबाइल है, एक सॉफ्टवेयर होता है जॉस स्क्रीन रीडर, ठीक है। जैसे कि आप सारे मतलब मोबाइल यूज कर लेते हो, इंस्टा यूज करते हो, स्नैपचैट यूज करते हो, टिकटॉक यूज करते हो, तो इस तरह से हम लोग भी कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जस्ट एक सॉफ्टवेयर है जो बोलता है, जो लैपटॉप पे और मोबाइल पे हर चीज हमें बताता है, और हम उसकी भी ट्रेनिंग जो है वो बच्चों को देते हैं कि बच्चा सुबह उठ के अपने न्यूज़पेपर खुद पढ़ ले, ठीक है। इवन हम बहुत सारी ऐसी ऐप्स भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि पता चल सके कि रूम में कितने लोग हैं, कौन हमें देख के मुस्कुरा रहा है, कलर कॉम्बिनेशन क्या है, हमने जाना कहाँ है, एक एक चीज जो है वो ऐप हमें बताती है। तो हम उससे भी करवाते हैं, उससे रिलेवेंट हम एक ट्रेनिंग करवाते हैं कि आपका क्या नाम है जो खुशाब से है? मोहम्मद उस्मान। आप मुझे ना बच्चे का नंबर अभी शेयर कर दें, तो इंशाल्लाह मंडे से ट्रेनिंग शुरू हो रही है। तो सबसे पहले तो हम उस बच्चे को ट्रेनिंग करवाएंगे कि वो अपने आप को संभाले कैसे, अपने काम सारे कैसे करे वो, ठीक है। जब वो इस पे कॉन्फिडेंस उसका बिल्ड हो जाएगा, फिर इजीली वो एजुकेशन में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है।
उसका नंबर मैं आपसे शेयर आप या आपके संसद को देता जी हूँ। जी श्रीलंका सबसे ज्यादा आइस डिलेट करने वाला मुल्क है, हमारे यहाँ भी लोग भी करते हैं आइस डिलेट ऑपरेशन वगैरह होते हैं यहाँ पे जाएंगे। देखिए ऑपरेशन की 2 रीजन है, मैंने आपको बताया था। ऑपरेशन की सबसे बड़ी 2 रीजन ये है कि सबसे पहले ये है कि आपको देखना पड़ता है कि बच्चे की डिसेबिलिटी क्या है, ठीक है। अगर तो वो बाय बर्थ ब्लाइंड है या अभी खानदानी तौर पे आर्थिक बीमारी है उसको, तो फिर तो नहीं होगा ऑपरेशन। अगर हादसाती तौर पे तो ये देखना पड़ेगा, जैसे मेरी इस टाइम पे आईसाइट 6/6 है, क्योंकि लेकिन मेरे दिमाग और आंख के बीच में जो कनेक्शन है ना वो मुतासिर हो चुका है कि वो कमजोर हो गया है, यानी कि डॉक्टर से कहता है कि मतलब पढ़ाई छुड़ा दो तो ये सब कुछ कर लेगी। तो मुझे उस वक्त याद है, मैंने डॉक्टर से कहा था कि सर, उन्होंने कहा आपका क्या नाम है, मैंने कहा राबेल। उन्होंने कहा क्या मतलब है इसका, मैंने कहा फूलों की बूटी। मैंने कहा तो आप कौन से फूल हैं, सदाबहार फूल है या आर्टिफिशियल? मैंने कहा सर मैं सदाबहार फूलों में से हूँ, अगर आपने मेरी तालीम छुड़वा दी तो मैं मुरझा जाऊंगी। तो मैंने ऐसी निगाह बचा के क्या करना है, तो मैं ऐसे फूल बनना चाहती हूँ कि मेरी खुशबू जो है ना आपको दूर तक महसूस हो। और कुछ ऐसा पहले वही डॉक्टर फोन करके कह रहे थे कि राबेल होंगी कोई, मैंने कहा जी मैं ही राबेल हूँ। कहते हैं मैं वही डॉक्टर हूँ जिसने आपसे कहा था कि तालीम छुड़वा दें ताकि बच्ची की निगाह वापस आ जाए, लेकिन आपने तालीम हासिल करके अपनी खुशबू जो है ना वो जगह जगह फैला दी। तो ये ऑपरेशन हर चीज़ का हल नहीं है। आप बच्चे को कभी भी इस चीज़ पे मत रहे हम तुम्हारा ऑपरेट करेंगे, उसको विजन दे, विजन कि जिंदगी गुजारनी कैसे है, ये सबसे बड़ा आर्ट होता है। और जब उसको विजन मिलता है ना फिर साथ साथ सारी चीजें हो जाती हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बच्चों के ऑपरेशन इलाज भी लगा देते हैं, उनको दवाइयाँ देके सुलाते रहते हैं, बच्चा क्या होता है पहले से रिवर्स हो जाता है, ऐसे ही होता है ना। Anyone else? That's it? थैंक यू सो मच जी। एंड मैं सिर्फ आप लोगों को ये कहूँगी कि जिंदगी काफी थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, थैंक यू सो मच। और मैं ये चाहूँगी कि आप सब हमारे जो इदारा है उसको जरूर विजिट करें, तो हमें बहुत थैंक साथ हो जाएगा।